Dear students and all my dear viewers, the present video what I am going to deliver before you is for class 9 ICSE Geography, and this is chapter 2. In reality, this is second part of chapter 2. Actually, in the first part we had seen about the longitude, and this particular part will deal with first part was latitude and this part will deal with longitude. Actually, in the previous video you have seen that what is the importance of latitude and longitude in our life, and the most important uses of latitude and longitude what we have learned in the first video was to find out the place on the earth. The today's video that is completely based on longitude will help us how to find out the time difference of one country to another country. Means if in India it is 10 o'clock, so at this time what will be the time in America? So how to find it? We can find it through the longitude. So if we are known to the longitude of two places, we can easily find out the difference in local time of these two places. So before starting this video, I would like to suggest to each and everyone that you should go to the first video first, because if you go through the first video, it will give you clear concept of the chapter. So it is very essential to go through first part, then you come to the second part, and then the third part. Actually, I have divided this chapter. It's a long chapter and it's a very difficult and technical chapter. That's why you must have a thorough knowledge, and it will be better for the student not to load the entire chapter in one day. That's why I have made it in different parts. So before coming to the point, longitude, just I again want to say to everyone that if anybody has not yet subscribed my channel, he or she must subscribe it and share the link of this channel to his or her friends, so that they will also be beneficial. I know that most of you watch my channel very sincerely and you have not yet subscribed. So if you subscribe it, you will get the notification as early as possible. So before wasting any more time in talks, I just start the chapter, and the first thing is longitude. So what is longitude? The longitude of a point is the angular distance of the point east or west of the Greenwich meridian. Greenwich meridian जो अर्थ के ठीक बीचों बीच नॉर्थ से साउथ में ज्वाइन करने वाली लाइन को ग्रीनविच मेरिडियन है वो, तो उसके ईस्ट और वेस्ट में जो एंगुलर डिस्टेंस पर बसा, जो एंगुलर डिस्टेंस वाला जो लाइन है वो कहलाता है लॉन्गिट्यूड. यानी किसी भी पॉइंट का लॉन्गिट्यूड क्या होगा? द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन. ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में या वेस्ट में जो एंगुलर डिस्टेंस पर प्लेस बसा हुआ है वही उसका लॉन्गिट्यूड कहलाता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर कहें कि कोई प्लेस ए है और ये 60 डिग्री ईस्ट पर बसा हुआ है, तो ग्रीनविच मेरिडियन से 60 डिग्री ईस्ट पर है. इसका मतलब हुआ कि उस प्लेस का जो लॉन्गिट्यूड होगा वो होगा 60 डिग्री ईस्ट. तो इस तरह से हम लॉन्गिट्यूड का पता करते हैं. ग्रीनविच मेरिडियन को आमतौर पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और इसके बाद लॉन्गिट्यूड को हम 0 से लेकर 1 2 3 करते करते 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक वहाँ पर हम लोग आते हैं. ये हमारा लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन है. इसके बाद आता है प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन क्या है? प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो ए लॉन्गिट्यूड. इट इज़ द प्राइम मेरिडियन. ये सबसे मेन मेरिडियन है, यानी सबसे मेन लॉन्गिट्यूड है ये. इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक रेफरेंस लाइन के रूप में यूज़ किया जाता है मेजरिंग ईस्ट वेस्ट डिस्टेंसेज. यानी यहाँ से ईस्ट और वेस्ट में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसको, इसके लिए इस मेरिडियन को एक रेफरेंस लाइन के रूप में यूज़ किया जाता है. ग्रीनविच मेरिडियन कॉन्वर्जेस ऑन द टू पोल्स. ये दोनों पोल पर आकर मिल जाता है और ये पास करता है थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन. लंदन के नज़दीक एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच. ग्रीनविच एक ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर, मतलब यहाँ से लोग
प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स या अदर जो हेवनली बॉडीज़ है उसकी स्टडी करते हैं, उसका ये एक तरह से लैब है यहाँ पर, तो वहीं से ये पास करता है, इसीलिए उसी को रेफरेंस लाइन मान लिया गया है और इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी है। प्राइम मेरिडियन तो इसको कहते ही हैं। तो ये तो हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ यहाँ पर आता है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ है। तो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर लाइन्स which join all places having the same angular distance। सेम एंगुलर डिस्टेंस पर बसा हुआ जितना भी प्लेसेज है सबको ज्वाइन करने वाला जो इमेजनरी लाइन्स है उसको हम कहते हैं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसको भी हम डिग्री में मेजर करते हैं और ये ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन होता है एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। इसको हम मेरिडियंस भी कहते हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, मेरिडियंस भी, क्योंकि ऑल प्लेसेज अलॉन्ग द सेम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस नून और मिड डे एट द सेम टाइम। क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड पर बसा हुआ जितना भी प्लेस है वो एक समय में, एक ही समय में उस वहाँ पर सभी प्लेसेज पर यानी उस लाइन पर बसा हुआ जितना भी देश है सभी प्लेसेज पर सभी देशों में एक साथ ही नून या मिड डे या नाइट सब एक साथ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड को मैंने एक तरह से डिफाइन किया है। अब इसको ज़रा एक बार हम फिगर के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। यस, कम टू द पॉइंट। सो दिस इज़ ए ग्लोब। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये ग्लोब है और ग्लोब में ये जो लाइन है ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये बीच वाला जो मोटा लाइन है ये है प्राइम मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन के दोनों तरफ ईस्ट में भी और वेस्ट में भी जो हम डॉटेड लाइन से दिखाया है ये है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसको मैंने कई इंटरवल में बांट दिया है। जैसे ये है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के बाद जो पहला डॉटेड लाइन है 30 डिग्री, फिर 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150 और लास्ट में 180। फिर ठीक इसी तरह यहाँ भी होगा, ये 30 डिग्री ईस्ट होगा, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 150 डिग्री ईस्ट और ये 180 डिग्री ईस्ट। फिर इसी तरह सेम होगा इधर 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट और ये लास्ट वाला लाइन 180 डिग्री वेस्ट। तो इस तरह से 0 से 180 तक ईस्ट में भी और वेस्ट में भी इसको मेजर किया जाता है। तो ये तीनों ही चीज़, तो लैटिट्यूड, ये इन ऑल दे आर लैटिट्यूड। बीच वाला हो गया प्राइम मेरिडियन और जितने भी ईस्ट और वेस्ट में जो लाइन्स हम दिखा रहे हैं डॉटेड से वो है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। एक बात और यहाँ पर समझ लेना जरूरी है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। ये जो प्राइम मेरिडियन है, वैसे हमने तो आगे वाले वीडियो में दिखाया था कि इक्वेटर अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। एक को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो ये प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन जो भी कह लें, ये क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री ईस्ट तक यह है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री वेस्ट तक ये वाला जो एरिया है यह है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये था इसका डिस्क्रिप्शन लाइन्स एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि लॉन्गिट्यूड का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ है, टाइम के साथ। तो लॉन्गिट्यूड और टाइम हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एज वी नो कि आवर अर्थ क्या है, आवर अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप और कोई भी चीज़ जो स्फेरिकल है उस पर अगर ऊपर से कोई लाइट पड़ेगा तो ज़्यादा है तो जाहिर है कि वो उसके आधे तक ही लाइट आएगा, उसका नीचे वाला जो पोर्शन है उस पर लाइट जाएगा ही नहीं। तो अर्थ पर जब सन का लाइट आता है तो अर्थ के आधे हिस्से पर ही लाइट पड़ता है और आधा हिस्सा हर समय बिना लाइट का रहता है। फिर वो घूमता है, घूमते घूमते जैसे उस सन के पास सामने आता जाता है उस पर लाइट आता है और दूसरा हिस्सा जो है वो पीछे की तरफ डार्कनेस में चला जाता है। तो यही चीज़ यहाँ भी है, स्फेरिकल शेप होने के कारण आधा अर्थ लाइटेड होता है, आधा अर्थ पर क्या होता है उस समय में डार्कनेस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अर्थ कैसे रोटेट करता है, अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। सनराइज में हम सूरज जो उगता है वो पूरब में क्यों उगता है, सूरज पूरब में क्यों दिखाई देता है उगता हुआ, पश्चिम में उगता हुआ क्यों दिखाई नहीं देता,
क्योंकि जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट में जाता है, इसीलिए ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो पहले हमको ईस्ट वाला पोर्शन का लाइट दिखाई दे देगा, इसीलिए हमको सूरज दिखाई देता है कि उग रहा है सूरज, लेकिन सूरज तो कभी उगता डूबता है नहीं, सूरज तो फिक्स रहता है। तो जैसा कि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, तो जो इल्यूमिनेशन जोन है जहाँ पर लाइट है वो आस्ते आस्ते क्या करता है, ईस्ट की तरफ मूव करने लगता है और ये स्लोली मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट। इन केसेस इट कॉजेज वेरिएशन इन द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, और इसी कारण से सनराइज और सनसेट में क्या हो जाता है, यानी डिफरेंट प्लेस पर अलग अलग टाइमिंग का डिफरेंस हो जाता है। अब इसको अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम देखें तो ये भी है कि अर्थ जो है 24 घंटे में 24 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, यानी अर्थ 24 आवर्स में अपने एक्सिस पर एक बार घूम जाता है, रोटेट कर लेता है। तो इसको, और ये पूरा अर्थ कैसा है, इसको हम 360 डिग्री मान के चल रहे हैं, यानी गोल है अर्थ। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड आर कवर्ड इन 24 आवर्स। यही मतलब हुआ कि अगर 24 घंटे में एक बार अर्थ घूम चक्कर लगा लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड आर कवर्ड इन 24 आवर्स। तो 360 डिग्री 24 घंटा, तो 1 डिग्री कितना, 1 डिग्री कैलकुलेट करने से क्या होगा, 24/360। और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 24 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से इंटू कर देंगे, तो 24 × 60/360, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4 मिनट, यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट को डिफर, यानी 4 मिनट का टाइमिंग डिफरेंस हो जाएगा। यानी अगर किसी प्लेस का लॉन्गिट्यूड अगर 60 डिग्री है और किसी का 61 डिग्री है, इसका मतलब वहाँ पर 4 मिनट टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये है लॉन्गिट्यूड का कैलकुलेशन। और जब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो इससे पहले एक बात और समझना जरूरी है कि टाइम डिफरेंस जो हमने कहा कैसे निकलता है, 1 डिग्री पर 4 मिनट, ये ऐड होता है जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं। जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, यानी कोई प्लेस अगर हमसे ईस्ट है तो वो टाइम डिफरेंस उसमें ऐड होगा, और कोई प्लेस हमसे अगर वेस्ट है तो टाइम डिफरेंस वहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये चीज़ याद रखने का है कि ईस्ट में ऐड होता है और वेस्ट में सब्ट्रैक्ट होता है। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल सम देकर, कुछ सम्स देकर मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इट इज़ 12 noon ऑन मंडे एट ग्रीनविच, व्हाट इज़ द लोकल टाइम एट टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्रीनविच में मंडे के दिन जिस टाइम पर 12 बज रहा है, दोपहर 12 बजे, तो उस वक्त टोक्यो जो 140 डिग्री ईस्ट पर बसा हुआ है वहाँ पर कितना बज रहा होगा। यानी अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहा है, ग्रीनविच कहाँ पर है, लंदन में, तो लंदन में अगर मंडे का 12 बजे का समय है तो ठीक उस समय टोक्यो यानी जापान में कितना बज रहा होगा। टोक्यो का लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 140 डिग्री ईस्ट और ग्रीनविच का लॉन्गिट्यूड नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ग्रीनविच का लॉन्गिट्यूड सबको मालूम रहता है 0 डिग्री होता है, तो हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने का मैंने यहाँ पर एक फिगर डाला है। ये जो तुम देख रहे हो ये लाइन, ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी ये ग्रीनविच टाइम है, और ये रेड कलर वाला जो दिखाई दे रहा है ये है टोक्यो 140 डिग्री ईस्ट पर बसा हुआ है, इससे 0 से ईस्ट की तरफ है ये, अगर वेस्ट होगा तो इधर लाइन डालते हैं हम, तो ईस्ट पर है। तो अब हम लोग देखेंगे, मैं इस सम्स को सिंपल मेथड में एकदम 3 लाइन में ख़त्म कर सकता हूँ। कैसे, और विदाउट हैविंग एनी कन्फ्यूजन। सीधा हम लोग को दिमाग में रखना है, पहला लाइन लिखना है डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में कितना का डिफरेंस है, यहाँ 140 या 0, तो 140 - 0 = 140 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड डिफरेंस हो गया कितना, 140। अब 1 डिग्री कितना मिनट को रेफर करता है, जैसे मैंने आगे बताया है 4 डिग्री को, तो 1 डिग्री अगर 4 मिनट को डिफाइन ये करता है, टाइम डिफरेंस डालता है, तो 140 डिग्री कितना मिनट को करेगा, 140 × 4 दैट इज 560 मिनट्स। अब 560 मिनट को हमको आवर में कन्वर्ट कर लेना है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9 hours 20 minutes। इसका मतलब जो टाइमिंग का डिफरेंस होगा वो होगा 9 hours 20 minutes का दोनों देश के बीच में। लेकिन अब सवाल उठता है कि जैसा मैंने कहा कि जब कोई प्लेस ईस्ट में होता है तो टाइम ऐड होता है, और वेस्ट में अगर होता है यानी ग्रीनविच से तो माइनस होता है। तो चूंकि ये जो है वो ग्रीनविच से ईस्ट में है ये लाइन, इसीलिए क्या करेंगे, टाइम शुड बी एडेड, टाइम ऐड होगा, बिकॉज टोक्यो इज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। तो लोकल टाइम है टोक्यो क्या होगा, वहाँ 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है 12 noon प्लस
उसके साथ हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 9 आवर्स 20 मिनट्स। तो 9 आवर्स 20 मिनट ऐड कर दिया, तो 12 बजे दोपहर से अगर 9 घंटा 20 मिनट हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, रात का 9:20 होगा। सो 9:20 PM। सो जिस वक्त ग्रीनविच में 12 बजे का दोपहर होगा, उसी समय में टोक्यो में रात का 9:20 होता रहेगा। इस तरह से हम किसी प्लेस का टाइम निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये निकालने का। पहला 3 स्टेप मैंने बना दिया। पहला निकालना है डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड, दूसरा फोर्स इंटू के डिफरेंस इन टाइम, फिर ईस्ट में है तो प्लस कर देना है, वेस्ट में है तो माइनस कर देना है। बस इतनी तो बात है, 3 स्टेप। मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसी चीज़ को एक बार फिर समझा रहा हूँ। आप देखो, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन द लोकल टाइम इज 6 AM ऑन मंडे एट एलेक्जेंड्रिया। एलेक्जेंड्रिया के मंडे के दिन सुबह का 6 बज रहा है एलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट में है एलेक्जेंड्रिया। व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट न्यू ऑर्लियन। यूएसए में एक जगह है न्यू ऑर्लियन जिसका लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री वेस्ट है, वहाँ कितना बज रहा होगा। यानी अगर इजिप्ट के एलेक्जेंड्रिया में 6 बज रहा है सुबह का मंडे के दिन, तो उसी टाइम में यूएसए के न्यू ऑर्लियन जिसका लॉन्गिट्यूड 90 डिग्री वेस्ट है, वहाँ कितना टाइम होता होगा उसी टाइम पर। तो वो चीज़ हमको देखना है। सबसे पहले वही 3 लाइन का बात है, यहाँ पर भी डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड सेम चीज़, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड सेम चीज़। तो यहाँ लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना होगा, ये 30 ईस्ट है, तो यहाँ से हम इधर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये है एलेक्जेंड्रिया और ये है हमारा यूएसए। तो एलेक्जेंड्रिया से पहले ग्रीनविच पर आएंगे, फिर ग्रीनविच से जाएंगे यूएसए। तो यहाँ से यहाँ पर आने में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करना पड़ेगा, इधर से 90। तो डिफरेंस कितना हो गया, 30 + 90 = 120। अब तुमको यहाँ पर देखो कि आगे बार तो मैंने माइनस किया था, इस बार प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि आगे बार तो ग्रीनविच तक आने में सिर्फ एक ही बार क्रॉस करना पड़ा 140, लेकिन यहाँ पर ग्रीनविच तक आने में 30, फिर यहाँ से आने में 90, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा 120। इसीलिए जब भी 2 प्लेसेज ग्रीनविच के ईस्ट या वेस्ट में होगा तो वहाँ पर हमें प्लस कर देना है। जब 2 प्लेस, एक प्लेस ग्रीनविच के ईस्ट में है और एक प्लेस ग्रीनविच के वेस्ट में है, तो लॉन्गिट्यूड प्लस हो जाता है। तो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कितना हो गया 120। डिफरेंस इन टाइम फोर्स इंटू करके 480 मिनट्स, इसको 60 से डिवाइड करोगे आवर बनाने के लिए तो होगा 8 आवर्स। अब ये 8 घंटा का डिफरेंस है दोनों के टाइम में। अब ये 8 घंटा प्लस होगा या माइनस होगा, ये कैसे जानेंगे। तो चूँकि यहाँ पर जो है ये प्लेस से ये वेस्ट है, मतलब 8 घंटा कम हो जाएगा, इधर का टाइम वेस्ट का कम हो जाएगा। तो जितना यहाँ बज रहा है उससे 8 घंटा कम वहाँ बजेगा। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे वहाँ पर, सिंस न्यू ऑर्लियन इज वेस्ट टू द एलेक्जेंड्रिया सो टाइम विल बी सब्ट्रैक्टेड। क्या होगा, सो टाइम एट न्यू ऑर्लियन कितना होगा, 6 AM में से 8 घंटा माइनस कर देंगे। तो 6 AM में से अगर 6 घंटा माइनस करेंगे तो 12 बजे रात होगा, और 2 घंटा माइनस कर लेंगे तो 10 बजे रात होगा। तो इसका मतलब 2 आवर्स बिफोर मिडनाइट, यानी 10 PM ऑन संडे। लेकिन अब दिन बदल जाएगा, क्योंकि 12 बजे रात तक के बाद क्या होता है, दिन चेंज हो जाता है। तो मंडे था, अब चूँकि 12 बजे रात से आगे आ गया 2 घंटा, तो इसका मतलब संडे, 10 PM ऑन संडे। तो ये तरीका है जो मैंने दोनों तरह का एग्जाम्पल दिया। एक बार एक ही सेम साइड में रहेगा, एक बार अलग अलग साइड में रहेगा। तो दोनों एग्जाम्पल से पूरी तरह से टाइम डिफरेंस निकालना, लोकल टाइम निकालना किसी प्लेस का आसान हो गया। अब एक और एग्जांपल हम देते हैं। इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, तो लोकल टाइम तुमको 2 प्लेस का दिया हुआ है, इस बार तुमको लॉन्गिट्यूड निकालना है। तो इस बार लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए जैसे मैंने सम्स रखा है यहाँ पर कि रेडियो न्यूज़ रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट फ्रॉम टोक्यो at 5 PM on Friday was received by a ship at 7 PM the same day. Find the longitude of the ship. यानी रेडियो से एक न्यूज़ का प्रसारण हो रहा है, टोक्यो से न्यूज़ प्रसारण हो रहा है और टोक्यो में 5 बज रहा है जापान में, ये फ्राइडे का समय है। और ये एक जहाज़ में बैठा हुआ आदमी, उसको 7 बजे सुनाई पड़ रहा है। तो 5 बजे जो टोक्यो में ब्रॉडकास्ट होता है, तो एक किसी जहाज़ में बैठा हुआ व्यक्ति उसको जब वो सुनता है तो उस टाइम में उसके यहाँ 7 बज रहा होता है। तो अब सवाल है कि ये जहाज़ कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। तो सबसे पहले जैसे वहाँ निकालते थे डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड, यहाँ निकालेंगे डिफरेंस इन टाइम। तो टाइम का डिफरेंस क्या होगा, 7 PM - 5 PM। शिप वाले को 7 PM में सुनाई पड़ रहा है और टोक्यो से प्रसारण होगा 5 PM। 7 PM 5 PM का डिफरेंस होगा। इसको मैंने यहाँ पर ये फिगर भी बना दिया है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये है 0 डिग्री, ये है 140 डिग्री ईस्ट, यानी टोक्यो का जगह है। और चूँकि टाइम 2 घंटा ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसके ईस्ट में होगा, इसलिए इधर होगा यहाँ पर ये वाला प्लेस, यानी शिप यहाँ पर है।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम देखा, यहाँ पर 7 बज रहा है, यहाँ 5 बज रहा है, तो डिफरेंस हो गया 2 आवर्स का। 2 आवर्स को मिनट में चेंज कर लेंगे, 2 × 60 120 मिनट्स। सो टाइम डिफरेंस इन 4 मिनट्स, टाइम डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स कितना होता है 1 डिग्री। तो उल्टा जा रहा है, जैसे वहाँ लिखते थे 1 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ लिखेंगे 4 मिनट 1 डिग्री। तो डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 120 को 4 से डिवाइड करेंगे, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस होगा। अब सवाल है कि 30 डिग्री इस लॉन्गिट्यूड में हमको प्लस करना है या माइनस। चूँकि ये प्लेस हमारे ओरिजिनल प्लेस से टाइम वहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो टाइम ज़्यादा तभी होगा जब वो ईस्ट में होगा। ईस्ट में लॉन्गिट्यूड प्लस होता है, इसीलिए इसके साथ हम ये 30 डिग्री प्लस कर देंगे। सो लोकल टाइम ऑफ द शिप इज़ अहेड ऑफ टोक्योज लोकल टाइम, से ज़्यादा होगा। शिप मस्ट बी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ टोक्यो। सो लॉन्गिट्यूड ऑफ द शिप कितना होगा, 140 + 30 = 170 डिग्री ईस्ट। तो इस प्लेस का यानी जहाज़ उस समय में 170 डिग्री ईस्ट पर होगा। इस तरह से इस तीनों एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से लॉन्गिट्यूड के सारे हम टाइम निकालते हैं या टाइम के सारे लॉन्गिट्यूड का भी हम फिक्स कर सकते हैं। इस तरह से मेरा आज का ये वीडियो तो यहीं पर ख़त्म होगा, लेकिन इस वीडियो चूँकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और इसको एक ही साथ करना बोरिंग भी हो जाएगा और साथ में स्टूडेंट को समझने में भी बहुत परेशानी होगी। उसके लिए मैंने इसका एक पार्ट और भी है जहाँ पर लोकल टाइम, इसके बाद यानी जो इंटरनेशनल जो डेडलाइंस है उसके बारे में, इसके अलावा हम लोग वहाँ पर ग्रेट सर्कल, स्मॉल सर्कल, तो बहुत सारा पार्ट्स भी बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसका कि किस तरह डेट चेंज हो जाता है एक कंट्री दूसरे कंट्री में। अब वो देखेंगे तो उसके लिए हमें 3rd वीडियो इस पार्ट का जो होगा उसका हमें इंतजार करना चाहिए। दैट वीडियो विल ऑल्सो बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही तुम्हारे लिए यूजफुल होगा, क्योंकि एग्जाम में दिस टाइप्स ऑफ सम्स आर जनरली आस्क्ड एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। सो थैंक यू फॉर टुडे।